Assalamualaikum students, I hope you all are fine and enjoying good health at your home. So as you know students, you have successfully covered your first and second term syllabus. Today we are going to start our third term of class 7. Subject is science. It's our lecture number 1. So the first chapter is electric current and circuit. It's from unit number 4, how things work. Chapter number 12, electric current and circuits. Students, first of all, I'll tell you that what is electric current. Electric current is the flow of electrons. Flow of electrons. Electrons are what? Electrons are negatively charged particles. So, electric current is the continuous flow of the negatively charged particles or the electrons. Now, what is circuit? It's from your topic circuit. Circuit is the combination of the cell or a battery, a connecting wire, a switch, which is a switch is used to control the flow of electric current or the negatively charged particles or electrons. So again, I'm telling you that what is circuit? Circuit is the combination of a cell, a battery, connecting wires, and a switch. So in this chapter we will discuss electric current and circuits. Circuits, there are two types of the circuit. One is the open circuit and other one is the closed circuit. As I told you that circuit is the combination of a battery, a cell, connecting wire and a switch. I'll tell you first of all what is cell or a battery. This is a cell. Okay? A cell has two terminals. One terminal is the positive terminal and second one is the negative terminal. You can see over here cell. This is the symbol. We used symbol for cell like this. Cell has two terminals. One is the positive, another one is the negative. And what is battery? This is the type of battery. There are a number of type of battery. This is just one type of the battery. A battery is the combination of identical cells. You can make the battery like this. If you are using a battery, you will connect this cell with another cell. Okay? In this way, that this is the suppose this is positive end and this is negative end. You will connect positive end with the negative end of the battery. Can you see? Positive end you will connect with the negative end of the battery, and current always flows from the positive terminal to the negative terminal. What is the direction of the current? Direction of the current is always from positive terminal to the negative terminal. So when you will make the battery, how you will connect the cells with another cell? Like this. You will connect one cell with another cell like this. One positive terminal is connected to the other negative terminal and positive terminal connected to the negative terminal of another cell. Students, as you can see in the diagram, this is an open circuit and this is a closed circuit. In this diagram, I already told you that a circuit is a combination of the cell, bulb, switch and the connecting wires. So this is the diagram we use for the open and closed circuit. In this diagram, you can see that a cell, ये cell जो है आपने इस तरह से draw किया हुआ है, जबकि cell की actual diagram मैंने आपको ये दिखाई है. तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप एक सेल को सेल के फॉर्म में ड्रॉ करें. एक बैटरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज होती हैं, एक बैटरी को बैटरी की शक्ल में आप ड्रॉ करें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इन साइंस वी यूज सिंबल्स. हम सिंबल्स यूज करते हैं साइंस में, और वो सिंबल जो है आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं. सेल देखें, टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, वन इज द पॉजिटिव एंड अदर वन इज द नेगेटिव. इन बैटरी आई टोल्ड यू दैट आइडेंटिकल सेल्स connected in series. You can see that positive end connected to the negative end and negative end connected to the positive end. Positive end connected to the negative end. हम पॉजिटिव एंड जो है वो थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं लाइन, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको लाइन थोड़ी छोटी ड्रॉ करते हैं.
स्विच ऑन, जब स्विच ऑन है तो ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और ये स्विच है। अब देखिए ये स्विच कनेक्ट है अपने सेकंड पॉइंट से, तो ये आपके पास स्विच ऑन है, मींस कनेक्टिंग वायर जो है एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं और करंट का जो है वो कंटिन्यूस फ्लो बन रहा है। इस वक्त सर्किट जो है वो क्लोज्ड है। यहाँ देखिए आप स्विच ऑफ, यहाँ स्विच और कनेक्टिंग वायर आपस में ज्वाइन नहीं कर रही, मींस करंट का कंटिन्यूस फ्लो नहीं है, तो इस वक्त सर्किट आपके पास ओपन है। इस वक्त अगर ये देखें आप इस ओपन सर्किट में, यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स जो हैं वो स्विच से कनेक्ट नहीं है, तो करंट का कंटिन्यूस फ्लो नहीं बन रहा। जब कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट नहीं है तो बैटरी जो है वो कंप्लीट करंट बल्ब को या कोई भी अप्लायंस आप यूज ऑपरेट कर रहे हैं उसको करंट प्रोवाइड नहीं करेगी, तो सर्किट आपके पास इस वक्त ओपन होगा। बल्ब के लिए आप सिंबल यूज करते हैं ये वाला, बल्ब ऑन है अगर तो आप इसकी ये ऑन शाइन लाइंस ड्रॉ करेंगे, अगर बल्ब ऑफ है तो आप इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। कनेक्टिंग वायर के लिए हम वायर्स आप सबने देखा ही होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स में दिस टाइप ऑफ वायर्स हम यूज करते हैं बेटी कोई भी सर्किट को बनाने के लिए, अंडरस्टैंड। अब फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें बल्ब यहाँ पर एज इट इज बल्ब लिखा हुआ है, बना हुआ है। यहाँ मैंने आपके लिए ड्रॉ की है सिंबॉलिक डायग्राम। सिंबल में देखें आप, मैंने बल्ब की डायग्राम ड्रॉ की है। ये बल्ब ऑफ था तो मैंने इसकी शाइनिंग लाइट्स नहीं बनाई है, ठीक है। अब देखिए सर्किट ओपन है इस वक्त, स्विच क्लोज नहीं है। इस डायग्राम में आज ये है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में आप देखें पॉजिटिव करंट ऑलवेज, मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो आप देखें यहाँ पर जो है वो स्विच क्लोज कर देती हूँ, यानी कनेक्टिंग वायर्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो बल्ब को प्रोवाइड कर रही है और आपके पास बल्ब जो है यहाँ ग्लो कर जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। अब मैं ये आपको थोड़ा सा डिटेल में इसकी चैप्टर वाइज आपकी रीडिंग में भी बता देती हूँ। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, डोरबेल्स, टेलीविजन्स, गीजर्स, हीटर्स, फैंस, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये आपकी डेली यूज अप्लायंसेज हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देख सकती हैं। अब इस सर्किट में मैंने आपको पहले भी बताया है दैट सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच, कनेक्टिंग वायर्स एंड अ बैटरी और अ सेल। अगेन बेटे सिंबल्स आप ऑलरेडी बोर्ड पर जो है वो देख चुके हैं। आप सब ही अपनी बुक्स अपने पास लेकर बैठे बेटे, आपकी बुक से चैप्टर नंबर 12 आप उसको साथ साथ देखते रहें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है यू कैन आस्क इमीडिएटली, ओके। आप अपना क्वेश्चन जो है वो चैट बॉक्स में भी बता सकती हैं, आपको किस पॉइंट को अगेन समझना है जी। आफ्टर दैट बैटरी आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी and provide it to us like a electrical energy। इस बैटरी में आपके पास, इस सेल में आपके पास केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन वो हमें प्रोवाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद देखिए बेटे बैटरी का मैं अगेन बता देती हूँ दैट व्हाट इज बैटरी दिस टाइप ऑफ बैटरी इन दिस टाइप ऑफ आइडेंटिकल सेल्स मीन सेम सेल्स ने सेम सेल्स को कंबाइन किया है। कैसे कंबाइन किया है? दैट पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन किया गया है दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, ताकि सेल का और करंट का कॉन्टिन्यूस फ्लो जो है वो मेंटेन किया जाए। इसके बाद बेटे आप अपनी बुक को देखिएगा, ये डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपने पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है। यहाँ देखिए नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से। सो दिस इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ, it will provide the continuous flow of current from positive terminal to the negative terminals. Abhi, the following points should be remembered while constructing a circuit diagram. There should be a source of electrical energy. Source of electrical energy is a cell or the battery. There should not be any gap in the electric circuit. अब अगर आप देखें वो कह रहे हैं there should be no gap in electric circuit। अगर यहाँ से वायर जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई, यहाँ से वायर, ये तो है ना क्लोज सर्किट,
सॉरी ओपन सर्किट हम इसमें लेते हैं, यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट हो गई है, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो है ये बैटरी अप्लायंस को यानी बल्ब को कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करेगी करंट का? नो, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पर करंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा। तो कॉन्टिन्यूस फ्लो या किसी भी अप्लायंस को वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई भी गैप, किसी भी किस्म का गैप ना आए। आफ्टर दैट बेटी हम रीड करेंगे द हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट? द हीटिंग इफेक्ट इज दैट जब भी किसी अप्लायंस से करंट जो है वो फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट जो है हर अप्लायंस की अपनी वोल्टेज होती है, वो अपनी वोल्टेज पर जो है वो वर्क कर रहा होता है, फंक्शन कर रही होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, ये बल्ब है। बल्ब जो है वो स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो नॉर्मली हम प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में मैंने आपको एग्जांपल बल्ब की दी है। अब क्या है हीटिंग इफेक्ट और ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यू नो दैट बल्ब इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड अस लाइट। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ ब्लोन अप इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर फिटेड ऑन अ मेटालिक बेस। बल्ब की डायग्राम में आपको आपकी बुक से ही दिखा देती हूँ, आप भी देख लीजिएगा। वो कह रहे हैं बल्ब इज अ इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर फिटेड ऑन अ मेटालिक बेस। ये मेटालिक बेस होती है, आप सबने बल्ब देखा भी होगा बेटे। अब इस मेटालिक बेस में इसके ऊपर जो है ये टंगस्टन वायर, ये टंगस्टन वायर, ये जो वायर स्प्रिंग की फॉर्म में यूज होती है, इसको टंगस्टन वायर कहते हैं। और यही हीट प्रोड्यूस करती है जब भी लगते हैं। ये टंगस्टन वायर फिट हुई होती है टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक वायर में, या आयरन वायर आप कह दें, से किसी भी मटेरियल की यूज़ कर लेते हैं, हो सकती हैं ये बल्ब में यूज़ ना वायर, जिसमें टंगस्टन वायर जो है वो फिट हुई भी होती है। अब टंगस्टन वायर जो है बेटे वो हीट करती है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसके हीट करने से वो लाइट प्रोड्यूस करती है और हमें जो है वो बल्ब ग्लो नजर आ रहा होता है। अब क्या है बेटे, बल्ब का फिर से स्ट्रक्चर बता रही हूँ। दैट बल्ब इज ब्लोन अप इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर fitted on a metallic base. Inside the bulb there is a fine tungsten wire called the filament. इस tungsten wire को हम filament भी कहते हैं, जो ग्लो करता है। ठीक हो गया। Supported by two thick wires. When current flows through the filament, it glows and gives light. अब बेटे, when current passing through a wire, it produces heat in its सराउंडिंग रीजन। जैसे टंगस्टन वायर यूज हो रही है ना बल्ब में, तो बल्ब जैसे ही जो टू थिक वायर्स में टंगस्टन वायर फिट हुई हुई है, वो थिक वायर्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगी। किसको? टंगस्टन वायर को। टंगस्टन वायर क्या होगी? करंट जैसे लेगी वो हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट हमें जो है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड एज द हीटिंग इफेक्ट इन द बल्ब, यानी हीट प्रोड्यूस कर रही है हमें लाइट। अब आप इलेक्ट्रिकल आयरन ले लें, आयरन में हीट प्रोड्यूस होती है और हम भी उसे जो है वो हीट की फॉर्म में ही यूज करते हैं। इसी तरह हर अप्लायंस में बेटे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है और उसको हम एन अदर फॉर्म या एन अदर सोर्स जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब किसके साथ बेटे आपको बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट हीट प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अब कितनी अमाउंट की हीट प्रोड्यूस करनी है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फैक्टर्स हैं जी, मटेरियल ऑफ द वायर, यानी आप किस मटेरियल की वायर यूज कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर एंड अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो। अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स यूज किए जाते हैं बेटे जो करंट की अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि डिफरेंट अप्लायंसेस जो है वो डिफरेंट करंट की वोल्टेज पर वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। इससे ज़्यादा और कम करंट अगर हो जाए, आप सबने सुना होगा घर में शॉर्ट सर्किट्स भी हो जाते हैं। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इसके डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जो है बेटे डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर मैंने आपको बताया है पहले, इलेक्ट्रिकल आयरन आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, गीजर्स यूज़ होते हैं, इमर्जन हीटर्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक टेस्टर है, इलेक्ट्रिक ओवन है एंड हेयर ड्रायर। ये सारी वो अप्लायंसेस हैं बेटे जो करंट को यानी इलेक्ट्रिक करंट इनमें चेंज हो जाता है इनटू द हीटिंग, इनटू द हीट। तो ये सब क्या है, इन अप्लायंसेस के हीटिंग इफेक्ट है बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक फ्यूज, आई डिस्कस्ड दैट द डिफरेंट अप्लायंसेस जो हैं वो बेटे फंक्शन करती है फंक्शन करती हैं इस बेस पर, यानी उन्हें कितना करंट चाहिए होता है। हर अप्लायंस को सेम करंट नहीं चाहिए होता है और इनकी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, अमाउंट ऑफ करंट कंट्रोल की जाती है बाय द रेजिस्टर्स यूज हुए होते हैं इन अप्लायंसेस में, और वो उनकी जितना भी उन्हें करंट सप्लाई चाहिए होता है वो उतना ही रिसीव करते हैं, बाकी को अलाउ नहीं करते कि वो अप्लायंस में एंटर हो। अब बेटे फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अगर अमाउंट ऑफ करंट जो है वो बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं, और इसको अदर वे में हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अब शॉर्ट सर्किट्स की बेटे ये रीजंस हैं, जैसे आप जो है हम इलेक्ट्रिकल वायर्स आप अपने घरों में देखें तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के इर्द गिर्द ना इंसुलेशन प्लास्टिक कवरिंग हुई होती है, उसे हम इंसुलेशन कवरिंग भी कहते हैं। अब वो इंसुलेशन कवरिंग क्या है, वो बेटे कंट्रोल कर रही है कि जो टू टर्मिनल्स की वायर्स यूज होती है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो है वो मूव करता है। अगर वो जो इंसुलेटिंग कवरिंग है, प्लास्टिक कवरिंग है, वो ब्रेक हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो क्या होता है, दोनों टर्मिनल्स या दोनों वायर जो है एक दूसरे को टच कर लेती हैं। जब वो टच कर लेती हैं तो क्या होता है, सर्किट शॉर्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। और इस जो भी ये काम हो रहा होता है, यानी सर्किट ब्रेक हो रहा होता है, सर्किट शॉर्ट हो रहा होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका एक टॉपिक भी है। इलेक्ट्रिक फ्यूज को मैं बता देती हूँ दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम इफ द वैल्यू ऑफ द करंट पासिंग थ्रू देम एक्सीड्स, अगर करंट की वैल्यू जो है वो एक्सीड कर गई है, बढ़ गई है, तो क्या होगा, exceeds in the prescribed current limit, then the unnecessary heating can damage these devices। तो क्या होगा, पहले जो हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा हुआ है, तो जब अननेसेसरी करंट उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, मिल रहा है उस अप्लायंस को, तो उसमें अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस होगी। अब अननेसेसरी हीट जो प्रोड्यूस होती है तो वो डैमेज कर देती है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को। अब इस सिलसिले में इट मे कॉज इलेक्ट्रिकल फायर, इट इज वेरी डेंजरस एंड मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। देयर इज अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज which is used in an electric circuit to prevent excess heating due to the flow of electric current। अब बेटे फिर से बता रही हूँ, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस क्या प्रिवेंट करते हैं, क्या कंट्रोल करते हैं, एक्सेस हीटिंग और द एक्सेस फ्लो ऑफ करंट और द एक्सेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्यूज का स्ट्रक्चर वो आपको बता रही है कि फ्यूज एक्चुअली में क्या होता है। फ्यूज कंसिस्ट होता है बेटे एक मेटल वायर पर जो फिक्स होता है बिटवीन टू क्लैम्प्स। अगर आप एक सिंबॉलिक डायग्राम चेक करें आपके फ्यूज की, ये आपकी बुक पेज नंबर 130 पर ये डायग्राम यानी सिंबल जो है फ्यूज के लिए यूज होता है। यहाँ मैं ऐड भी कर देती हूँ कि फ्यूज के लिए आप सिंबल क्या यूज करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक वायर है जो क्लैम्प हुई होती है बिटवीन टू वायर्स। अब द फ्यूज वायर इज यूजुअली मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। अब ये जो फ्यूज की वायर है ये टिन या लेड के अलॉय से मिलकर बनी होती है। अब बेटे यूजुअली अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू टू रीजंस। वन इज द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मैंने आपको बताया है कि जो अगर सर्किट ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होने की वजह जो इंसुलेटिंग उसकी प्लास्टिक कवरिंग होती है वो डैमेज हो जाती है, वो किसी भी रीज़न की वजह से ख़राब हो जाती है, तो जो टू वायर्स हैं वो ज्वाइन कर जाती हैं, आपस में टच कर जाती हैं, तो सर्किट जो है वो शॉर्ट हो जाता है। या फिर ओवरलोडिंग। क्या है बेटे, टू रीजंस हैं, वन इज द शॉर्ट सर्किट एंड अदर वन इज द ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट हैपेंस व्हेन टू वायर्स टच ईच अदर। दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन कवरिंग over the wires gets damaged by heating effect. Sometimes jumbled up wiring also leads to a short circuit. वायर्स जो हैं वो जम्बल्ड अप हो जाती हैं आपस में, यानी गुच्छे की शक्ल में अगर वायर्स जो हैं वो नहीं तरतीब से रहेंगी तो क्या है वो भी उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग होती है, जो इंसुलेटिंग कवरिंग होती है, उसे डैमेज कर देती है और जो है सर्किट शॉर्ट हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या है? Overloading of a circuit happens when a large number of devices are connected to the same power. अब ज़्यादा सारे अप्लायंस यानी जो आपकी मेन सप्लाई है वो इतना करंट प्रोवाइड नहीं कर रही, बट लेकिन जो आप अप्लायंसेस उसे रन करना चाह रहे हैं, फंक्शन जितनी भी अप्लायंसेस काम करेंगे वो अप्लायंसेस
ज़्यादा करंट चाहती हैं, लेकिन मेन सप्लाई इतना करंट प्रोवाइड नहीं कर रही है. द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम पावर सप्लाइंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल, इफ वी कनेक्ट आवर टेलीविजन सेट, एन इलेक्ट्रिक आयरन एंड अ रेफ्रिजरेटर टू द सिंगल प्लग. आप एक सिंगल प्लग में एक सिंगल स्विच में आप इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्विच है, एक स्विच है, वो इन तीनों को वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो क्या होगा, ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट शॉर्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट बेटे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. आपका फोर्थ पॉइंट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट. इसके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी मैग्नेट. यू नो, आपने देखा भी होगा अपनी क्लास 4, 5, 6 से हम आपको मैग्नेट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बेटे. दिस इज द मैग्नेट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेट्स वी यूज्ड. इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मैग्नेट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैग्नेट, बट एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स. हाउ मेनी पोल्स? 2 पोल्स. हर मैग्नेट के बेटे 2 पोल्स होते हैं. दिस इज द बार मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट भी होता है और साइलेंड्रिकल मैग्नेट भी होता है. और ये जो आपको दिखा रही हूँ ये है बार मैग्नेट. इस मैग्नेट में आप देख सकते हैं वन इज द ऑन वन एंड एस इज रिटन एंड ऑन अदर एंड एन इज रिटन. तो एन जो है बेटे शो करता है नॉर्थ पोल को और एस शो करता है साउथ पोल को. इसी तरह जैसे मैंने आपको करंट का बताया है, बैटरी की कनेक्शन बताई है कि बैटरी कैसे कनेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, तभी जो है आपको कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट मिलता है. सिमिलरली जब आप मैग्नेट यूज कर रहे होते हो, मैग्नेट को भी दूसरे मैग्नेट से ज्वाइन करते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि साउथ एंड ऑफ द मैग्नेट शुड बी अटैच्ड टू द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट. यानी दूसरे मैग्नेट का इसके साथ नॉर्थ पोल अटैच होना चाहिए, तभी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज होता है. अब बेटे हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. यू हैव लर्न्ड अबाउट मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म इज व्हाट? द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट इन अ सर्टेन रीजन. यानी हर मैग्नेट का एक सर्टेन रीजन होता है जिसमें वो अपना एक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस किया है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, यानी जिस रीजन, जिस एरिया तक या जहां तक उसकी अप्रोच है फील्ड की, वो उसकी मैग्नेटिज्म कहलाती है. यानी उस एरिया में जहां पर एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अटैच या अट्रैक्ट करता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसकी मैग्नेटिज्म है. अब वो कह रहे हैं मैग्नेटिज्म आपने पढ़ लिया हुआ है. ये भी पढ़ लिया है कि 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेट होते हैं. वन इज द साउथ एंड अदर वन इज द नॉर्थ. अब क्या होता है, द सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑलवेज रिपेल. जैसे मैंने आपको बताया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करने के लिए जरूरी है कि मैग्नेट का साउथ पोल कनेक्ट हुआ होता है टू द नॉर्थ पोल. अगर आप साउथ को साउथ से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं बेटे. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास नॉर्थ, ये साउथ, और दूसरा मैग्नेट जो है ये भी आप ऐसे कर लेते हैं, ये साउथ और ये नॉर्थ. अब क्या होगा, अब ये सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट, ये सेम पोल्स हैं, तो यहाँ क्या होगी, रिपल्शन. यानी सेम ऑफ पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल्स ईच अदर, बट द डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट. अब हम डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट ले लेते हैं. ये आपके पास N, ये S, और ये हो गया आपके पास नॉर्थ, और ये हो गया साउथ. अब ये क्या होगा बेटे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मींस डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर. मैग्नेट्स के बेटे, मैग्नेट्स कम इन वेरियस शेप्स लाइक बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट. हॉर्सशू मैग्नेट आपको मैं दिखा देती हूँ आपकी बुक पेज नंबर 133. यू कैन सी बच्चे, दिस इज अ हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप. ओके, हॉर्सशू मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है. एंड यू नो व्हाट इज अ मैग्नेटिक कंपास. मैग्नेटिक कंपास का वर्ड भी आप लोग क्लास 4 से ही पढ़ती आ रही हैं. एंड दिस इज अ डिवाइस, an instrument used for the navigation. So it's a navigational instrument and used to find out the directions on the earth. How many directions are there on the earth? There are 4 directions, but in magnet आप जो है वो डिस्कस करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल.
तो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉइंटेड होता है और नॉर्थ पोल हमें डायरेक्शन जो है वो बता रहा होता है कि आपकी किस डायरेक्शन में ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ जो है वो मौजूद है। आफ्टर दैट बेटे करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। हाउ? आप देखिए ये डायग्राम। इन दिस डायग्राम आपने देखा होगा, बल्कि बच्चे इन 6th क्लास यू हैव रेड अबाउट types of the magnet. Magnets may be a temporary magnet or a permanent magnet. So we produce temporary magnet by giving the electricity to that thing may be a wire और a nail, जो भी आप चीज़ है जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें टेम्परेरीली जो एक मैग्नेटिज्म है, थोड़े टाइम के लिए मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाती है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी एक बैटरी है बच्चे, वो कनेक्ट हुई हुई है। ये देख रहे हैं आप, आयरन नेल है, ठीक है। आयरन नेल के साथ उन्होंने पेपर क्लिप्स जो है वो अटैच की हुई है। अब आयरन नेल ये एक वायर है, वायर आप कॉपर की ले ले, आयरन की ले ले, वो वाउंड की हुई है अराउंड द नेल। अब ये जो सेल है वो इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज प्रोवाइड कर रहा है आपकी इस वायर के थ्रू और वो चार्ज गुजर रहा है नेल से भी। अब इस वक्त जो नेल है, आप देखिए इस नेल से पेपर क्लिप अटैच्ड है, नजर आ रहा है आप सबको? आई होप कि आप सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आप देखिए पेपर क्लिप्स इस नेल के साथ अटैच है। जब ये बैटरी सेल प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट इस आयरन को थ्रू द वायर, अब इस नेल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है फॉर सम टाइम, तो इस नेल को इस वक्त हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना किसी पेपर क्लिप्स में कोई चार्ज नहीं है, पेपर क्लिप कोई मैग्नेट मटेरियल नहीं है, बट ये फिर भी इस नेल के साथ अटैच है इस डायग्राम में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिकॉज ऑफ द टेम्परेरी मैग्नेट विच इज प्रोड्यूस इन द नेल। और जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रिक करंट दे रही है और नेल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट कर रही है किसको? पेपर क्लिप्स को। अब बेटे आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर से वही टॉपिक, इट्स आवर लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बेटे? ये मैग्नेट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। Again I am telling you, a magnet produced by the flow of electric current in a wire is called electromagnet, and electromagnets are called as temporary magnets too. इन मैग्नेट्स को हम टेम्परेरी मैग्नेट्स भी कहते हैं। क्यों टेम्परेरी मैग्नेट्स कहते हैं? अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो रोक लेते हैं तो समहाउ मे बी फॉर सम टाइम जो नेल है आपके पास, इस एक्सपेरिमेंट में आप ये एक्सपेरिमेंट आपके घर पर भी कर सकते हैं। आप एक ये बैटरी लीजिएगा, एक सेल ले लीजिएगा, ठीक है, इस सेल को आप अटैच कीजिएगा, आपकी कोई भी आयरन वायर है या कॉपर वायर, उस कॉपर वायर को वाउंड करना है, आपने लपेट लेना है आयरन नेल के इर्द गिर्द, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, नेल जो है वो ये बैटरी आप ये सेल आपको पता है बहुत कम वोल्टेज का होता है, तो नेल जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत लाइट इन वेट होनी चाहिए। बहुत मोटी नेल ले लेंगे तो वो इसकी इसमें जितना करंट है वो उसके लिए काफी नहीं होगा। फिर आपको एक बैटरी यूज करनी पड़ेगी अगर आप मोटी नेल ले रहे हैं या मोटी वायर यूज कर रहे हैं, तो वायर थिन लेनी है। अगर थिक वायर है तो आप उसके लिए बैटरी यूज कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करें, आप उस आयरन नेल के इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो वाउंड कर लीजिएगा। वाउंड करने के बाद इलेक्ट्रिकल वायर के 2 एंड्स जो आपके पास बचेंगे, जैसे आपको इसमें दिखाती हूँ मैं, ये आपके पास एक कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। ये 2 एंड्स इलेक्ट्रिकल वायर्स के, ये 2 एंड्स इलेक्ट्रिकल वायर हैं बेटे। आपने एक एंड ज्वाइन कर लेना है आयरन के एक पॉइंट के साथ और दूसरा एंड आपने ज्वाइन कर लेना है आयरन नेल की दूसरे एंड के साथ। अब क्या होगा, ये वायर्स जो हैं करंट प्रोवाइड करेंगी आयरन नेल को, और जो आयरन नेल है उसके पास आप लाइट इन वेट की ही, मैं फिर आपको कह रही हूँ, इतनी कैपेसिटी की, इतनी वेट की, इतनी थिक चीजें यूज कीजिएगा जो आप जितना करंट आपके पास मौजूद है, ठीक है। अब ये जो नेल होगी जिसके इर्द गिर्द आपने इलेक्ट्रिकल वायर वाउंड की हुई होगी, वो नेल सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए मैग्नेट के तौर पर काम करेगी और उसके साथ आप कोई भी लाइट इन वेट चीजें जो है वो लगाएंगे, वो उसको अट्रैक्ट करेगी। अब इसको टेम्परेरी मैग्नेट हम क्यों कहते हैं? आफ्टर सम टाइम अगर आप देखें उस नेल को
डिस्कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल बैटरी से, आपने उसका इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्शन खत्म कर दिया, आप इलेक्ट्रिकल वायर भी उस पर जो वाउंड की हुई है वो रिमूव कर दीजिएगा। उसके बाद भी कुछ देर तक इलेक्ट्रिक जो नेल है वो टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पर काम करेगी। लेकिन इसको टेम्परेरी मैग्नेट इसलिए कहते हैं, जो आयरन नेल है उसमें से मैग्नेटिज्म थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगी, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। अगर आप उस आयरन नेल को जमीन पर थ्रो कर देते हैं, फॉल कर देते हैं थोड़े प्रेशर के साथ, तो उसमें से मैग्नेटिज्म टोटल तौर पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस में आपको बता दूं, हम लाउड स्पीकर्स में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, टेलीविजन सेट्स में यूज़ करते हैं, फैंस में यूज़ होता है, टेलीफोन्स में यूज़ होता है। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं, आप अपनी डायग्राम्स में भी देखें, पेज नंबर 133 डायग्राम में आपको क्रेन्स नजर आ रही हैं। अब क्रेन्स मैग्नेटिक मटेरियल गार्बेज से जो कलेक्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन्स करती हैं, यानी जितना भी गार्बेज इकट्ठा हुआ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स यूज कर उसमें गार्बेज में जितना भी मैग्नेटिकली मटेरियल होता है, जैसे आयरन वगैरह जो भी मटेरियल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, वो मटेरियल सेपरेट आउट हो जाता है। अब लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू लिफ्ट हैवी कार्गो आयरन कंटेनर्स। अब कार्गो कंटेनर्स उठाने के लिए भी जो है जो हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हॉर्स शू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक डोर बेल्स। आप ये देखिए आपकी डायग्राम में देखिए आपके पेज नंबर 133 पर ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, एन इलेक्ट्रिक डोर बेल। अब इसमें ये हॉर्स शू मैग्नेट मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इसका वर्क आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायर जो है वो इसके इर्द गिर्द बाउंड हुई है। अब ये इलेक्ट्रिक वायर इसमें मौजूद बैटरी, ये बैटरी इसको करंट प्रोवाइड करेगी। अब ये आर्टिफिशियल या टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पर काम करेगी, और डोर बेल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर फंक्शन कर रही होती है, जो हमारे नॉर्मली घरों में भी लगी हुई होती है डोर बेल। फिर डॉक्टर्स यूज वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस टू टेक आउट स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द आईज, एयर्स और नोजेस। हमारी नाक, आँख में अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिन मटेरियल्स को कोई भी मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, यानी उसके साथ अटैच हो जाते हैं, वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। हमारी आईज में, नोज़ में या कान में अगर कोई ऐसा मटेरियल चला जाता है तो डॉक्टर्स जो हैं उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल यूज़ करते हैं। इसके बाद बेटे आपका चैप्टर जो है वो एंड हो गया है। आपके चैप्टर में आ जाते हैं आपके वर्क पेजेस। आपका वर्क पेज नंबर 128, यू कैन सी 128, you have to solve it. This is the match, the correct answer. After that your work page number 131. Now you know, fill in the blanks. You have to write its answer over here, and इसके बाद आपका वर्क पेज नंबर 134. This is the sentences, and you have to mark it with true or false statements. After that, choose the correct answer. Your exercises start now. Name the following C and D part. आपको बेटे पार्ट A, B कंप्लीट करना है। C और D पार्ट में आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नोट्स के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। वो आपने लर्न करने हैं, इसके साथ साथ आपने अपनी नोटबुक्स पर राइट भी करने हैं। इसके साथ ही बेटे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर आपका यही लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितने भी आपको अपडेटेड लेक्चर हैं, फ्रेश लेक्चर हैं आपके थर्ड टर्म के, वो इजीली मिल जाएं। इसके अलावा गेट्स स्कूल सिस्टम का फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बेटी आपका होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। आपका होमवर्क है, आपने यही चैप्टर नंबर 12 जो है वो रीड करना है। कंप्लीटली आप रीड करेंगे, इसके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे अपने आप। लर्न ऑल वर्क पेजेस मैंने आपको नोट भी करवाए हैं। एक्सरसाइज में पार्ट ए भी कंप्लीट करना है आपने, और सी और डी में स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर्स हैं। अलोंग विद दिस यू हैव टू ड्रॉ एन ओपन एंड क्लोज्ड सर्किट लाइक दिस, यू कैन सी इन द डायग्राम्स, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। ये आपने अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ भी करना है बच्चे। अंडरस्टैंड? मैं क्वेश्चन आपको यहाँ बता भी देती हूँ। आपके सी पार्ट से यू हैव टू लर्न क्वेश्चन नंबर 1, 2,
3, 7, 8। आपके डी पार्ट से आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7। तो ये था बेटे आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट। आप इसे बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।